Okay. So, uh, yes. So basically, in the last lecture, we have discussed about link building, and in today's lecture, yes, and in today's lecture, we are going to discuss uh, regarding how to generate the content. So before we move ahead, if anyone have any question related to link building, please let me know so that I can guide you accordingly. Sir, Yes, yes. Tell me. the blog you posted on training in SEO, if we are copying it and posting as a classified somewhere, like in a guest post, so if we multiple it, like from your website authorized person, he must have kept somewhere on different websites, like related websites about digital marketing and SEO. So if I kept it on unrelevant website, or maybe on the same website the authorized person has kept, so it will multiply and it will put, and like you say, if you post one content more than like multiple times in a week, then Google will decredit you, like. Okay. So is it good or not that unauthorized person should not multiple your blog posting? Mm-hmm. Okay. So basically, what we have to understand that for few things we don't have control. So if other persons are circulate, there are two things fundamental. Number one is you are producing the content which must be unique, and number two is whatever you produce you can circulate on the internet, and that is going to be duplicate. If I am producing the content on training in SEO, it must be unique and must be informative as well. But if I circulate it on social media or classified websites or social bookmarking websites, it is going to be, of course, it is going to be the same article or same content which I am going to circulate. So Google knows this, that this is the same content, but multiple users or the same user has circulated this content at a multiple platform. So in that case, you don't have to worry for the same. Number two, if someone shared your content on a different platform, and if someone is doing intentionally in a number of quantity, right, then in that case, uh, you can either inform to the Google, right, and if Google has considered these activities in a bulk, not in one or two times or three times or 10 times, you can say up to 1000 times. If Google consider this as a spam, then Google will notify you with the help of Google Search Console, right? In the Google Search Console, you will be able to know, right? In the Search Console, you will be able to know that mm, uh, you have the spam alert from the Google. So this is the scenario, right? So you cannot control who can circulate your content. And honestly speaking, in my career, I have seen it rarest of the rare time, because if I will, if even though I have to ruin your credit, I will not circulate your content, because I don't know whether how Google is going to consider it. If it is my bad luck that Google is considering those things as a positively, then it may I am promoting my competitors, right? So that is the answer. सर Yes. Okay. जैसे बहुत सारी मल्टी प्रोडक्ट्स यहाँ है,
तो उनको प्रमोट करने मतलब उनका कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक सेम रहता है, समवॉट 80-90% सेम रहता है। तो समझो मुझे उसमें न्यू आर्टिकल जनरेट करना है, तो उसमें ऐसी प्लगइन्स होती है जो मुझे एक समझो आर्टिकल जनरेट करके दे, फिर मैं उसको पूरा एडिट कर लूं। तो ऐसी प्लगइन्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मैं वो पूरा मैं वो नहीं करूंगा, पर मैं क्या करूँ, उसमें मुझे एक बेस लाइन मिल गई, मतलब उसका सब कुछ उसने कॉपी करके एक आर्टिकल बनाया जो एक्चुअली फेक है, पर उसको फिर पीछे से मैं अच्छे से एडिट करूंगा जैसे वो फेक लगे ही नहीं ऐसे। आई विल चेंज सिनोनिम्स, आई विल चेंज समझो वर्ड्स एंड ऑल स्टफ, स्टाइल्स एंड ऑल। करेक्ट। तो वैसा कोई प्लगइन्स हो तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा ना। करेक्ट। ऐसा है, पहले तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये चलेगा कंटेंट कि नहीं चलेगा। दैट शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन इनटू योर माइंड। आई वुड सजेस्ट ये नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि आप समझो कि ये आर्टिकल स्पिनर है अगर आपको ये चाहिए, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि फंडामेंटल चीज जो हमने लास्ट लेक्चर जो फंडामेंटल चीज हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर में देखी, हाँ, गूगल फिलोसॉफी, राइट? फोकस ऑन द यूजर एंड एल्स विल फॉलो। ये केस में आप गूगल यूजर को फोकस नहीं कर रहे हो, गूगल को फोकस कर रहे हो। क्यों गूगल को फोकस कर रहे हो? क्योंकि आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो यूजर की इंफॉर्मेशन में। यू आर जस्ट क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर द सेक ऑफ लिंक। सर काइंड ऑफ जैसे समझो मैं फेस्टिवल्स के बारे में लिख रहा हूँ, तो फेस्टिवल का तो समझो जो बेसिक है, समझो मैं 100 ऑफ फेस्टिवल्स हैं, मैं 100 फेस्टिवल के बारे में आर्टिकल लिखना चाहता हूँ समझो, पर जो उसके कोर आइडिया तो सेम रहेगा। फिर मैं समझो वो जो आर्टिकल बन के मिला मुझे, फिर मेरे जो बेसिक नॉलेज हैं, मतलब जो मुझे ज्यादा मालूम पड़ता है वो भी मैं ऐड करूंगा ना। ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि लेके रख दिया, बट मुझे भी उस आर्टिकल के बारे में, मतलब मुझे भी उस फेस्टिवल के बारे में मालूम कहाँ से पड़ेगा, समझो नेट से ही पड़ेगा ना। ऐसे नहीं, सही फिर है। मैं उसको अपनी अपनी टचेस दूंगा, ऐसे कहने का मतलब वो है। हाँ, वो चलेगा, लेकिन आपने मतलब जो लेके नहीं रख देना है वहां से, पर खुद एक आइडिया लेनी है, फिर उसके ऊपर समझो 4-5 घंटे इन्वेस्ट करने हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, नहीं तो आइडिया कहाँ से लेंगे? ऐसे बात है। हाँ, आइडियाज सी दोनों में अंतर यही एक ही है कि पहले केस में आप कॉपी कर रहे हो, आइडियाज नहीं ले रहे हो। दूसरे केस में आपने जो दूसरी बार एक्सप्लेन किया उसमें आप आइडियाज ले रहे हो। मतलब तो वही है कि मैं अपने हिसाब से सब उसमें बदलूंगा, बहुत कुछ बदलूंगा, मतलब अपना इन्फॉर्मेशन भी बदलूंगा मैं, मतलब जितना मुझे मालूम होगा मैं वो भी डालूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई बस लेके बस मुझे भी मतलब कंटेंट थ्रो नहीं करना है, पर मैं उसमें अपना एडिशन तब कर पाऊंगा जब समझो मुझे भी एक लाइन मिलेगी। समझो फेस्टिवल या किसी के बारे में लिखा, तो हमको अपने फेस्टिवल के बारे में समझो 6-7 फेस्टिवल के बारे में मालूम है, या मतलब 10-20 के बारे में मालूम है, पर इंडिया में समझो। हाँ, उसमें अभी आज मैं जो आर्टिकल का कंटेंट है ना, उसके बारे में मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। हाँ, कि किस तरीके से आर्टिकल के कंटेंट को जनरेट करता है। तो उसके हिसाब से फिर आप क्या उसके हिसाब से फिर हम लोग आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट कैसे जनरेट किया जाता है। मतलब स्पिनर समझो एक यूज करना है, जैसे हमारा पीसी एक स्पिनर यूज कर रहा है, काइंड ऑफ एक बार समझो यूज कर रहा है, तो इस पे तो कोई ट्रैकिंग नहीं हो सकती ना गूगल की। मेरा कहने का मतलब वो है, फिर पूरा समझो हम भले बदल देंगे उसको आर्टिकल को। मैं अगेन मेरा एक ही आंसर है कि एंड ऑफ द लेक्चर यू विल हैव बेटर क्लैरिटी। ओके सर, राइट, क्योंकि अभी वो टॉपिक ही बाकी है, तो कोई बात नहीं है सर। राइट, वो यही लेक्चर में ऐसा होगा ना, तो हम आपके ही प्रोडक्ट के लिए टॉपिक बनाएंगे, तो you will have more clarity and everyone have more clarity that how to generate the content, right? So it is very fine, right, correct, ये yes एक आप लोगों से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप लोग मुझे बताओ कि बैकलिंक क्या है, राइट? क्योंकि मैंने तो काफी सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो now you should tell me that चेतन आप बताइए what is backlinks? सर बैकलिंक्स ये होती है कि हम लोग अपने वेबसाइट या अपने वेबसाइट पे हम लोग कुछ भी हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने कुछ नया आर्टिकल मैंने कुछ डाला है या मैंने कुछ कंटेंट डाला है, मैं अपने मतलब लिंक के थ्रू, जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला, सही एक मैंने ब्लॉगिंग डाल दिया, एक ब्लॉग मैंने पूरा लिखा, उसमें मैंने एक मेरा लिंक डाल दिया,
ऐसे ही Okay. मैं अलग अलग वेबसाइट पे भी कर सकता हूँ जो मेरे से रिलेवेंट है। जैसे Correct. टेक की है, टेक की मैंने जैसे कि दूसरा प्लेटफॉर्म है जैसे कि योर स्टोरी इज अ प्लेटफॉर्म दे गिव द अपॉर्चुनिटी टू पोस्ट देयर लिंक्स। तो Correct. वहां पे मैं अपना लिंक बैक लिंक डालूंगा तो वहां से मतलब जितने भी यूजर्स होंगे दे कैन कनेक्ट डायरेक्टली मेरे वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं वो। करेक्ट करेक्ट, ये एक तरीका हुआ बैकलिंक बनाने का। हम्म। और कौन से आप इस विशाल आप बताइए और कौन से तरीके हैं? बिजनेस लिस्टिंग इज आल्सो बैकलिंक मेकिंग, वेरी गुड। आई थिंक। जैसे गूगल पे समझो अपना प्रोडक्ट्स या करेक्ट करेक्ट जैसे करेक्ट करेक्ट। माय बिजनेस बना दिया और उस पे फिर सब नेक्स्ट किया। नेक्स्ट, सही है सही है। नेक्स्ट, और कोई तरीका जिससे ब्लॉग बैकलिंक बना राइटिंग, सकते? Competitor link analysis. कॉम्पिटिटर लिंक एनालिसिस से आप जहां पर उन्होंने लिंक लाइव की है वहां पर हम लोग लाइव कर सकते हैं। और कुछ? सर पर एक मिनट सर, जैसे समझो हम लिंक लाइव कर सकते हैं, उसका मतलब समझो एग्जांपल समझो एक दो मिले ना कुछ, आप जैसे समझो एक बना के दिखाओ कंपटीटर वाला, किसी का भी मतलब किसी के भी बारे में, बट वो थोड़ा क्लियर नहीं है, कहीं समझो हमको बनाने का उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने का, वो थोड़ा एक बार दिखा देना। मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि आपको हाँ, वीडियो में कॉम्पिटिटर, हाँ मैंने दिखाया है कि कॉम्पिटिटर की मैंने लिंक किया को भी है। राइट आपको डाउनलोड करना है, और वो डाउनलोड करके जिस तरीके से आप बिजनेस लिस्टिंग हमने गूगल का किया था उस तरीके से वो है लिस्टिंग तो को लाइव मतलब करना बिजनेस है। लिस्टिंग जैसा ही ना देखने जाओ तो। हाँ हाँ, वो सिमिलर आइदर बिजनेस लिस्टिंग और बुक मार्किंग और सिमिलर टू दैट, ओके, चीज तो एक दो ही ही है कि, बेसिकली दो ही वे है ना, एक बुक मार्किंग और एक बिजनेस लिस्टिंग, और तीसरा नहीं, ब्लॉगिंग। और कोई भी है तो भी आपको इतना आपको इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई वो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो हमें सबमिट करना है, और जैसे ही सबमिट करेंगे वो लाइव करेगा। अगर फोन नंबर या ईमेल आईडी है उससे वेरिफिकेशन करेगा, और क्या हो सकता है उसमें? फाइन सर, नो इशू। तो पॉइंट एक ही है कि वहां की उसने जो प्रेजेंस क्रिएट की है वहां पर हमें प्रेजेंस क्रिएट करनी है। एक चीज उसमें मुझे और एक चीज उसमें बताना मैं भूल गया हूँ, या मुझे और एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि, और एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो आप ढूंढ रहे हो ना, ये जो आप ढूंढ रहे हो कॉम्पिटिटर की लिंक, वो दूसरा भी तरीका है। एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आप पेड टूल से ले लो, वेदर इट इज SEMrush. SEMrush और Yeah. या राइट, या उबर सजेस्ट, राइट। या फिर और एक है कि आप गूगल से ही, गूगल को ही टूल बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये शाउट एंड आइक है। अगर मुझे ये पता करना है कि शाउट एंड आइक ने कहाँ कहाँ पर लिंक बनाई है, राइट, आई कैन डू इट इजीली। कैसे? मुझे और कुछ नहीं करना है, मैंने जहां पर भी लिंक बनाई होगी लीगल बिजनेस की, मैंने ये एड्रेस को सबमिट किया होगा, यस और नो? क्योंकि मेरा मेजरली अहमदाबाद के लिए, इन अहमदाबाद आई हैव ओनली वन एड्रेस, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मुझे ये पता करना है तो मैं ये दो चीज इसमें एंटर करूंगा और एंटर डाल दूंगा, और इसमें एक चीज क्या करूंगा, -shoutenike.com कर दूंगा। समझ रहे हो आप? यहां पर मैंने किसका इस्तेमाल किया, गूगल एडवांस सर्च का इस्तेमाल किया, और यहां से मैं एंटर लगाता हूं, राइट। मुझे ऐसी सारी लिंक मिल गई जहां पर मैंने अपना प्रेजेंस क्रिएट किया है। समझ रहे हो आप? जस्ट डायल है, startup.cc है, learnpic.in है, इंडिया मार्ट है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, राइट, ऑनगोइंग है, एटसेट्रा। कितनी लिंक मिली मुझे? 1420। अभी ये चीज लॉजिकली मैंने क्या किया, मैंने कंपनी का नाम लिखा और कंपनी के नाम के साथ में उसका एड्रेस लिख दिया और -shoutenike.com किया। क्यों मैंने -shoutenike.com किया? वेबसाइट से हटाना है उसको, बस वेबसाइट हटानी है और अदर लिंक्स लिख जाए। हाँ, मुझे अपनी वेबसाइट, वो वेबसाइट पर मैं कभी लिंक नहीं बनाने वाला हूँ। अगर मैं ऑब्वियसली शाउटेनाइक का कॉम्पिटिटर हूँ, आई एम नेवर गोइंग टू क्रिएट द लिंक, आई एम नेवर गोइंग टू क्रिएट द लिंक, राइट, ऑन द sorry, I will never be able to create the link on the shoutenike.com। तो वो केस में मैं नहीं वहां पर बना पाऊंगा, तो मैंने उसको सबट्रैक्ट कर दिया। और इसका क्या फायदा है? इसका और सबसे ज्यादा ये फायदा है कि गूगल की नजर में जो लिंक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली है वो ऑर्डर में मैं लिंक बनाऊंगा, यस और नो? क्योंकि उसने जस्ट डायल को सबसे पहले रखा है,
मानिए मेरी 1420 लिंक्स है, उसमें से गूगल की नजर में सबसे प्रायोरिटी वाली लिंक कौन सी है? जस्ट डायल वाली है। तो गूगल को उसको प्रायोरिटी देता है वो हमें सीधा यहां से मिल जाएगा, राइट? तो ये और एक तरीका है कि जिससे आप कॉम्पिटिटर्स की लिंक को ढूंढ सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, आई हैव ऑलरेडी रिटन द सेम। लिंक नहीं, एक मिनट, मैंने यहाँ पर जो लिखा है बैकलिंक लिंक बिल्डिंग, यस, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा है गूगल सर्च से भी आप ढूंढ सकते हो उसको, ब्लॉग पोस्टिंग डायरेक्टरी कॉम्पिटिटर सेट गूगल अलर्ट क्विकली, और यहाँ से आप कॉम्पिटिटर गूगल से भी ढूंढ सकते हो, राइट। मैंने और कोई जगह पर लिखा होगा लेकिन मैं यहाँ पर अभी मेंशन कर देता हूँ। ये मैंने और कोई जगह पर लिखा होगा, लिंक बैकलिंक एनालिसिस, बैकलिंक लिस्ट, नहीं यार, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और नोट्स में वही है, आप कैसे उसको ढूंढ सकते हो वो भी मैंने लिखा है, गूगल सर्च। एडवांस सर्च नहीं, गूगल सर्च एनालिसिस, यस, ये रहा, यही है, ये रहा, ये पूरा लेक्चर उसका है, पूरा टॉपिक उसका है। तो ये मैं उसको सीधा वहां पर रख देता हूँ। ठीक है, ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल पोस्टिंग, आर्टिकल की कंटेंट कैसे बनाना है, क्योंकि एसईओ में या डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो हमारे पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से, हैफेजर्डली नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट बनाए, राइट। तो कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो कोई भी वेबसाइट के लिए जब आप कंटेंट बनाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिसके लिए आप कंटेंट के टॉपिक ढूंढ रहे हो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है या कौन सी सर्विस बेच रहा है, और वो जो प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहा है उसमें उसकी वो कैसे रेवेन्यू उसमें से जनरेट कर रहा है। दूसरा है टारगेटेड रीजन, कौन से रीजन के लिए आप लिख रहे हो, इंडिया के लिए लिख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए लिख रहे हो, which for which country you are writing the content, audience and their interest, ये ऑडियंस कैसा है, राइट। ये ऑडियंस मैच्योर ऑडियंस है कि इमेच्योर है, हाउ इज द ऑडियंस, और उसके इंटरेस्ट कौन कौन से है, राइट, उसके इंटरेस्ट कौन कौन से है वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद पता होना चाहिए टारगेटेड कीवर्ड, टारगेटेड कीवर्ड मानी कौन से कीवर्ड पर आपको टॉप में रैंकिंग को लाना है। ये चार चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप सामने वाले के लिए मीनिंगफुल कंटेंट के टॉपिक
नहीं ढूंढ पाओगे, और इवन दो यू हैव फाउंड, you might not be able to promote, you might not be able to engage your targeted audience, right? तो ये चीज सारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ट्रेनिंग इन एसईओ है तो बिजनेस मॉडल है प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। टारगेटेड रीजन कौन सा है मेरा? टारगेटेड रीजन है गुजरात, और क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद। ऑडियंस कौन सा है मेरा? तो ऑडियंस है मेरा who would like to make their career in digital marketing। एज ग्रुप है 18 से लेकर 35 एज ग्रुप, और उसके इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो यंग जनरेशन के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सारे इंटरेस्ट है उसके। और टारगेटेड कीवर्ड कौन सा है? तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन अहमदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद, राइट? ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। उसके बाद है आप मल्टीपल वे से क्रिएट कर सकते हो ब्लॉग के टॉपिक्स। तो एक जो तरीका है जो मुझे पर्सनली मेरा डेवलप किया हुआ है और मुझे वो बहुत मीनिंगफुल लगता है, वो है कि आर्टिकल लिखना मानी क्या करना, या इंफॉर्मेशन शेयर करना मानी क्या करना। तो हम जो यूजर की बाइंग जर्नी है या बाइंग पैटर्न है, उसको बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बिफोर बाइंग, दूसरा है ड्यूरिंग बाइंग, और तीसरा है आफ्टर बाइंग। सो बिफोर बाइंग में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ले लो, यूजर के दिमाग में सर्टेन क्वेश्चंस रहते हैं या सर्टेन इंफॉर्मेशन उसको लेने की जरूरत होती है, राइट? सेम फॉर द ड्यूरिंग बाइंग और सेम फॉर द आफ्टर बाइंग। वो ही हम लोग टॉपिक बनाकर उसके हिसाब से आर्टिकल को लिख सकते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर 2, जब वो टॉपिक आप बना रहे हो तो वो टॉपिक को आप आपकी सेल्स फनल में भी यूज कर सकते हो। किस तरीके से? लेट मी गिव यू वन क्लासिक एग्जांपल। मैंने एक लिखा यहाँ पर कि भाई सपोज हम लोग रुद्राक्ष की माला का एग्जांपल लेते हैं, राइट? तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना सेक्शन, उसमें मैंने क्या किया है, मैंने सबके बेस टॉपिक ले लिए। बेस टॉपिक मानी जनरल क्वेश्चंस, और यहाँ पर मैंने उसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखा है। अभी व्हाट आई वुड लाइक टू टेल कि यहाँ पर और एक मैं बना देता हूँ, राइट? और यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई व्हाट इट डज एंड हाउ दे विल हेल्प एंड यूजर्स। तो इसको अगर मुझे रुद्राक्ष की माला के फॉर्म में ये टॉपिक को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? कोई बताएगा मुझे? बेनिफिट, राइट, मुझे यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि हाउ रुद्राक्ष माला कैन क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी and energy in you। नंबर 2 है how रुद्राक्ष माला can help you in health, या जो भी आप उसको इसको आप अच्छे तरीके से टॉपिक को मठार सकते हो या उसको ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर की बाइंग जर्नी में कौन कौन से क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ सकते हैं या कौन कौन से चीजें अगर हम उसको दे तो वो ज्यादा कन्विंस हो सकता है, वो हम लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं। और उसके हिसाब से जो बेस टॉपिक मानी जो ए कॉलम में लिखे हैं वो, उसके हिसाब से हम लोग सी कॉलम में पर्टिकुलर टॉपिक को बना रहे हैं, राइट? दूसरा है
types of products with unique features. So type of products with unique features में हमें क्या लिखना है? तो type of products with unique features में हमें यह लिखना है कि रुद्राक्ष की माला के कितने types है, right? So type of रुद्राक्ष and when to use it. ठीक है, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो. उसके बाद है हाउ प्रोडक्ट्स गिव बायर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो ये ऐसी चीज नहीं है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, लेकिन हाउ रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष माला कैन हेल्प यू, जो हमने ऊपर लिखा वही है, ये सिमिलर है पॉजिटिव हेल्थ में, राइट. तो ये हम लोग इसमें और कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, कि भाई आपको कोई पर्टिकुलर, आपको कहाँ पर रखना चाहिए, वेयर यू शुड स्टोर योर रुद्राक्ष, वेयर एंड हाउ यू शुड स्टोर. अभी ऊपर आएगा, लेकिन ये टॉपिक ऑलरेडी नीचे आ रहा है तो मैं इसको नहीं बना रहा, तो इसमें मुझे और कोई टॉपिक अभी नहीं दिख रहा है. उसके बाद हाउ प्रोडक्ट्स, ये हो गया. उसके बाद है हमारी लाइफ में वो वैल्यू एडिशन कैसे करती है. तो ये भी अगेन ये टॉपिक और ये टॉपिक सिमिलर है कि ये हेल्थ में कैसे हेल्प करता है और पॉजिटिव एनर्जी में कैसे हेल्प करता है. या फिर हम लोग और एक जेनेरिक टॉपिक करते हैं कि लिस्ट ऑफ ways रुद्राक्ष can help you in health, wealth and Confidence. हाँ, Confidence. मुझे घर पे शांति बनाए रखने के लिए ऐसा मुझे लिखना है. Peace. Peace. Peace at home. पीस एट होम, राइट. तो ये तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ. उसके बाद थिंग्स टू कंसिडर टू बाय कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स. अभी आप बताओ इस पर मैं कौन से टॉपिक पर लिख सकता हूँ. ये बेस टॉपिक है, समझ रहे हो आप, ये बेस टॉपिक है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सब टॉपिक बना रहा हूँ. थिंग्स टू कंसिडर टू बाय कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग. we can write the types like एक मुखी, पांच मुखी ऐसी होती है ना रुद्राक्ष वाला. हाँ, वो तो हमने शायद यहाँ पर लिखा है ना, टाइप्स यहाँ पर लिखा है. तो वो भी शायद इसी में आएगा ना फिर कि किस टाइप प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट परचेज करना है. नहीं, ये टाइप नहीं पूछा है. यहाँ पर क्या पूछा है मैंने, थिंग्स टू कंसिडर. यहाँ पर मैंने पूछा है कि आप जब रुद्राक्ष को ले रहे हो तो आप कैसे चेक करोगे वो सही है कॉस्ट कि नहीं. इफेक्टिव. नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं. रुद्राक्ष when how to check originality of रुद्राक्ष. जैसे कि वो बोलते हैं लोग कि अगर आप पानी में उसको रखो और अगर वो लकड़े का बना होगा, आई मीन फेक होगा, तो वो तरेगा उस पर और वरना वो डूब जाएगा, राइट. सही जो असल होता है वो अंदर चला जाता है. हाउ टू चेक ओरिजिनलिटी ऑफ रुद्राक्ष. दूसरी चीज है कि सोर्सेस ऑफ ओरिजिनल रुद्राक्ष. तीसरा, लिस्ट ऑफ थिंग्स यू शुड चेक बिफोर you would like to buy रुद्राक्ष. ठीक है, तो these are the ways जिससे आप आर्टिकल के टॉपिक बना सकते हो. और ये सारे टॉपिक कैसे हो गए, ये सारे टॉपिक आपने यूजर की बाइंग जर्नी को कंसीडर करके बनाया. ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये यूजर को बाय करने से पहले
आप इसके आंसर से हेल्प कर सकते हो। दूसरी चीज है ड्यूरिंग बाइंग। सो ड्यूरिंग बाइंग में सॉरी ड्यूरिंग बाइंग में आपके लिए कौन काम करेगा? सॉरी बट आपकी हेल्थ कैसी है अभी? अभी शायद अच्छी अच्छी हाँ। अभी काफी अच्छी है। वर्टिन 16 ने अच्छा काम किया है। तो ड्यूरिंग बाइंग में हम लोग किसको ड्यूरिंग बाइंग में हमें कौन हेल्प करेगा? हमारा लैंडिंग पेज। क्योंकि ड्यूरिंग बाइंग के वक्त हम लोग किसको सामने रखेंगे? कौन से मार्केटिंग बंदे को सामने रखेंगे? लैंडिंग पेज को सामने रखेंगे। बिफोर बाइंग में हम कौन से मार्केटिंग वाले बंदे को सामने रखेंगे? आर्टिकल को सामने रखेंगे जो हमने ऊपर अभी क्रिएट किया वो, राइट? सो टेक केयर all the points we have discussed in conversion optimization topic, clear? और आफ्टर बाइंग जो है, राइट, ये हुआ ड्यूरिंग बाइंग। ड्यूरिंग बाइंग के हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में हेडर में क्या होना चाहिए, बैनर में क्या होना चाहिए, कंटेंट में क्या होना चाहिए और फुटर में क्या होना चाहिए उसके लिए विस्तार में ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद है आफ्टर बाइंग। सो आफ्टर बाइंग में हम लोग क्या देख सकते हैं कि रुद्राक्ष की माला को कैसे स्टोर करना चाहिए। हाउ you should take care रुद्राक्ष माला, राइट? बहुत सारी चीजें उसमें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, राइट? उसके बाद है ये एक बहुत जेनेरिक टॉपिक हो गया, उसमें आप ये भी फिर वो पर्टिकुलर डू एंड डोंट्स ऐसे भी लिख सकते हो विथ रुद्राक्ष या रुद्राक्ष माला, व्हाटएवर। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? बेस्ट ऑप्शंस, Sir, बेस्ट। how to energize this Rudraksh Mala? Very good. Yes. How to energize this Rudraksh Mala? How to energize Rudraksh Mala? Very good. Correct. तो ये सारे तरीके हैं how to store and clean Rudraksh Mala या रुद्राक्ष या माला, whatever. ठीक है? How तो to use Rudraksh Mala? राइट, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड टेक केयर ड्यूरिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारे हमने लिखी है, Yes. समझ रहे? इसमें हमने बेसिकली क्या किया है, किसी की कॉपी नहीं की है। ये हमारे खुद के जो इंट्यूशन बोल सकते हो या जो खुद का एक्सपीरियंस है, राइट, उसके हिसाब से हमने इसको यूजर की बाइंग जर्नी को एनालाइज करने के बाद ये टॉपिक्स बनाया। व्हेन टू डू मेंटेनेंस, तो आप कब बोल सकते हो कि अभी आप ये रुद्राक्ष को यूज नहीं कर सकते? व्हेन ये मेंटेनेंस है वो हमने ये टॉपिक ले लिया, ये मेंटेनेंस वाला है, राइट? और आपको कब रुद्राक्ष की माला को चेंज कर देना चाहिए या उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से क्या बोलना चाहिए वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से ये मैं लिख रहा हूँ। I'm so sorry for taking someone to different track, but people sir जो लोग भी रुद्राक्ष पहनते हैं वो उसको अच्छी तरह से उसको एनर्जाइज करते हैं और प्लस उसको जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है वो, राइट? तो यहाँ पर उल्टे तरीके से लिखना है कि भाई हाउ ओल्ड रुद्राक्ष इज बेटर एंड व्हाई। ठीक है? लेकिन सर जो चैंटिंग करते हैं वो बोलते हैं उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो दैट इज मोर बेटर देन करेक्ट। ठीक है, तो हम उसके तरीके से ये टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। ये पहला फेज है जिसमें हमने क्या किया, यूजर की बाइंग जर्नी के हिसाब से टॉपिक को बनाया। और
मैंने तो ये पहली बार टॉपिक बनाया है रुद्राक्ष की माला के ऊपर, तो भी मैंने समझो कि 10 मिनट में शायद 10 टॉपिक बना लिए। इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये टॉपिक को, ऐसा नहीं है, राइट, वी कैन ऑप्टिमाइज दिस टॉपिक। उसका मतलब सेम रहने वाला है, लेकिन उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है टाइटल का, वो हम अच्छी तरीके से करेंगे, राइट। जैसे कि वो लोग करते हैं ना, दिव्य भास्कर या संदेश वाले, राइट, तई मुरे एना डैडी जोड़े शू कर्યું जो लेटेस्ट फोटा, राइट। तो ये अपने एनकरेज करेगा, लाओ चलो क्लिक करें जो ही लिया, राइट। तो वो तरीके से हम लोग उसको टाइटल को इस तरीके से बनाएंगे कि यूजर को क्यूरियोसिटी इतनी हो जाए, हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ विद रुद्राक्ष माला, समथिंग लाइक दैट। तो जिससे उसको इतनी क्यूरियोसिटी हो जाए कि वो उस पर क्लिक करने के वो क्लिक कर दे, राइट, या इंस्पायर हो जाए क्लिक। उसके बाद जो दूसरा उसका ऑप्शन आता है, हमने टॉपिक तो बनाए, राइट, तो वो टॉपिक को हम लोग वो टॉपिक के लिए लोग क्या ढूंढ रहे हैं वो हमें कैसे पता लगेगा। सपोज हमने पहला लिया कि भाई रुद्राक्ष की माला कैसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, राइट। तो ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से इनकॉग्निटो मोड में चला गया। इनकॉग्निटो में हमेशा आपको कोई भी रिसर्च वर्क करना है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लॉगिन में होकर मत करना उसको, वरना आपकी पास्ट जो सर्च हिस्ट्री है ना वो उस पर इन्फ्लुएंस करेगी। माने आपको वो रिजल्ट नहीं दिखेगा जो गूगल लोगों को दिखा रहा है या जो पहली बार सर्च कर रहा है उसको दिखा रहा है, आपको वो रिजल्ट दिखाएगा जो आप बार बार उसको देख रहे हैं। क्लियर? सो दैट इज व्हाई आई always preferred incognito mode compared to any other one. ये मैंने यहाँ पर लिखा, राइट। तो यहाँ पर ये हुआ, और यहाँ पर आप लोग देखोगे ना तो ये लिखा है, यस ये जो है ना ये बेसिकली उसके रिलेवेंट कीवर्ड है, राइट। ये उसके रिलेवेंट कीवर्ड है जो लोग रुद्राक्ष की माला को सर्च करते वक्त ढूंढते हैं, राइट। तो ये एग्जैक्टली लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि हमें इनमें से हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ से कॉपी करने के बाद नोटपैड में जाना है, और नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो ओरिजिनल टॉपिक है ना आपका वो यहाँ पर ले लेना है नोटपैड में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट को क्यूरेट कर रहे हैं, कंटेंट को बना रहे हैं टॉपिक के हिसाब से। उसके बाद आप ये कंटेंट राइटर को दे सकते हो। तो पॉजिटिव एनर्जी में एक जो चीज जो हमने लिखी है वो ये है कि लोग ये तरीके से ढूंढते हैं बेनिफिट्स है, और उसमें भी लोगों को ये पता रहता है, लोगों को ये पता है कि उसका मुख होता है, राइट। कैन वी वियर रुद्राक्ष माला व्हाइल सिपिंग, तो डू एंड डोंट्स में इसको ले सकते हैं, यस राइट। साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ रुद्राक्ष माला, राइट। तो ये हम लोग इसको भी ले सकते हैं टॉपिक के हिसाब से। रुद्राक्ष वेबसाइट ये हो गया, विच रुद्राक्ष इज बेस्ट ये भी हमने ले लिया, हाउ टू वियर रुद्राक्ष, राइट। तो ये भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी का पार्ट है, हो गया। तो हमें जितने काम के थे वो, और रुद्राक्ष का यहाँ पर इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम लोग सिर्फ रुद्राक्षा लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया कि हमारे टॉपिक के अनुसार इंटरनेट पर लोग किस तरीके से ढूंढते हैं उसको हमने डेटा से इसको जोड़ दिया, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रुद्राक्षा से सर्च करेंगे। सपोज मैंने यहाँ से रुद्राक्षा से सर्च किया, ये कंटेंट क्यूरेशन का एक पार्ट है। यहाँ से मैंने क्या किया, रुद्राक्षा से सर्च किया, तो मुझे जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ चाहिए
वो मैं यहाँ से कोई भी जगह पर ले लूंगा। तो रुद्राक्षा क्या है ये हमें यहाँ से मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट राइटर के लिए यहाँ से ये लिंक को नोटपैड में रख देंगे। समझ रहे हो आप? जब कंटेंट राइटर रुद्राक्षा के बारे में अगर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो फ्रॉम वेयर ही और शी शुड टेक, शी कैन टेक इट फ्रॉम हियर, राइट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये काम जितना आप अच्छा करोगे ना, कंटेंट राइटर नॉर्मली ये सब चीजों में टाइम नहीं इन्वेस्ट करता है अनफॉर्चुनेटली, और जो इन्वेस्ट करता है वो बहुत पैसे लेता है, बहुत मानी 3 या 4 रुपए पर वर्ड। अगर हमें ही करना तो फिर कंटेंट राइटर को देना ही क्यों है? अगर आप लिख सकते हो तो नहीं दोगे तो चलेगा, राइट। अगर आप ये इसमें पूरा क्या है, अपन लोग तो आइडिया बोला, जो सॉफ्टवेयर वाला आइडिया मैंने बोला ना, तो मतलब उस पे से वो पूरा काम करके देगा, फिर हमको पूरा अपने टचेस तो देनी है, मतलब अपनी डायरेक्शन तो बदलनी है, वो मैंने ही लिखा है। नहीं, इसमें वर्ड्स भी डालने हैं। ये वैसा हुआ ना, जैसे कि अपन कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं, अपन किसी की वेबसाइट देखते हैं तो वी जस्ट गेट द आइडियाज फ्रॉम देयर, तो अपन लोग आइडिया ले सकते हैं कि अपन को कैसे लिखना है। भले हम क्या करें, वो आर्टिकल हमको बन के मिल गया, समझो स्पिनर में से हमको मिल गया आर्टिकल, फिर हम वो बाजू में रखेंगे, वो आर्टिकल हम पढ़ेंगे और उसके से ऊपर अपना आर्टिकल लिखते जाएंगे अपनी लैंग्वेज में। फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो उसको क्यों आप स्पिन कर रहे हो, ओरिजिनल करके ही अपनी लैंग्वेज सब जगह से पढ़ना, इन्फॉर्मेशन निकालना, वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देगा ना सब निकाल के। वो तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उससे नहीं निकलवा सकते हो, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको खुद निकालनी पड़ेगी। अच्छा। वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। अच्छा। और इसको फिर आपको पढ़ के आपके शब्दों में लिखना है, राइट। ठीक। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आता है कि दूसरा कौन सा था हमारा टॉपिक, साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ वियरिंग रुद्राक्षा, राइट। तो लिखा है व्हाट इज रुद्राक्षा। तो नेक्स्ट विंडो में खुला हुआ है आपने, साइंटिफिक हेल्थ बेनिफिट्स। यस करेक्ट, वेरी ट्रू, राइट। तो ये राइट, तो ये यहां से सीधा हम लेकर क्या कर सकते हैं, राइट। उसके बाद 1 to 14 में मुख्य रुद्राक्ष माला बेनिफिट, तो इसको भी आप सीधा ले सकते हो। लेकिन कंटेंट राइटर को ये इतना आसान नहीं है कि ये हमने रेफरेंस लिंक दे दी तो वो बना पाएगा, उसको भी सब कुछ रीड तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं करोगे ना, तो कंटेंट राइटर तो क्या करेगा, उसको जितना ढूंढकर एक लाइन में मिलता है वो ही वो दे देगा। दैट इज वाई मैं ये सजेस्ट करता हूं कि एनालिसिस का पार्ट आप ही करो। સર આમાં કેવું થાય છે, લાઈક પર અવરલી ચાર્જ બેસિસ પર કન્ટેન્ટ રાઇટર હાયર કર્યો હોય ને, તો વી લાઈક બીઈંગ અ ફર્સ્ટ વેબસાઇટ ઓનર, આપણી પાસે તો કોઈ આઈડિયાઝ ના હોય કે કયા ફ્રેગમેન્ટ્સ માં એ વેરી થઈ શકે છે ઓર કોન્ક્રીટ થઈ શકે છે. So we always trust whatever the professional we have already hired. પછી જ્યારે content લખીને આપે ને, and when we read it, then we know about our competitors. We match, like hypothetically even we can match, not on the Google. Okay, આ content માં certain વસ્તુઓ concrete નથી. Then we tell him, અને એ બધા જે modification કરવામાં જે content જ્યારે final output આવે ને, then we realize કે આ જાતે લખ્યો હોત તો કેટલું easy હોત. ट्रू, इसमें आपको क्या करना है, एनालिसिस કરીને જો થોડુંક બેસિક ફોર્મેટ રેડી કર્યું હોત પછી હાયર કર્યો હોત, then it will be a smoothing process, then completely depending on him. एग्री। और दूसरी एक चीज मैं बोलता हूँ, ये केस में आपको क्या करना है कि आपके कंटेंट राइटर को भी
मैंने जो पहले 4 चीज नहीं बताई आपको, आपके बिजनेस मॉडल आपका नंबर 1, नंबर 2 रीजन, आपका, रीजन, हाँ, वो सारा आपको कंटेंट राइटर को एजुकेट करना पड़ेगा। ओके, वो अगर आपने एजुकेट किया ना तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से लिख पाएगा या लिख पाएगी, राइट। वो ऐसा नहीं होता है कि हर एक कंटेंट राइटर को अच्छा नहीं लिखना होता है, वो लिखना चाहते हैं लेकिन उसके पास आपके जितना नॉलेज नहीं होता है, तो उसको बेसिक नॉलेज आपको सबसे पहले देना पड़ेगा, और वन टाइम प्रोसेस है। एक बार अगर मैंने रुद्राक्ष के बारे में उनको बता दिया, राइट, और थोड़ी इंसाइट दे दी आधे घंटे या 20-25 मिनट बात करके, तो आप फिर आसानी से उसको, और फिर उसको आप वो और स्मार्टली अभी क्या करो, टेक्नोलॉजी का आप अच्छा उपयोग करो। जब भी आप किसी को भी बता रहे हो ना कोई चीज, तो उसको रिकॉर्ड कर लो, राइट। कभी भी ऐसे मत बताओ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल जी सूट में उसने रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दे दी है गूगल ने, तो अभी मैं कोई भी रिसोर्स को कोई भी चीज एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर जी, उसको राइट जगह पर स्टोर कर देता हूँ। तो वही चीज अगर दूसरे को करनी है ना, तो मेरी इतनी एनर्जी ना जाए और उसको वही एनर्जी से पता लग जाए। समझ रहे हो आप? सर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी किस में है वो, जी सूट में? जी सूट में गूगल मीट जो है ना, गूगल मीट, हाँ, ये जी सूट है हमारा, ये नई चीज है, अभी लास्ट वीक ही इन्होंने लाई है, अभी तक नहीं था वो। लेकिन आपको अपने जीमेल में नहीं मिलेगा, वो मैंने कल चेक कर लिया, अभी तक उन्होंने जीमेल में ये फैसिलिटी को नहीं लाया, लेकिन जीसूट में ला दिया है। जीसूट में अगर आप देखोगे तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, तो मैं आपको भेज दूंगा किस तरीके से वो करना है, राइट। तो यहाँ से आप व्हाट यू कैन डू कि यहाँ से आप कहाँ पर गया, यहाँ से ये करके, राइट, यहाँ से आप यहाँ पर एक 3 वर्टिकल, जब मैं ज्वाइन नाउ करता हूँ ना, तो यहाँ पर 3 वर्टिकल डॉट आते हैं, और 3 वर्टिकल डॉट में रिकॉर्ड मीटिंग, राइट। तो यहाँ से आप कर सकते हो, क्लियर, राइट। सो दिस आर द वे कि आप इसको कर सकते हो। तो हम लोग कहाँ पर थे, टॉपिक में। सो 1 to 14 मुखी रुद्राक्ष माला बेनिफिट, तो वो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग इनकॉग्निटो में थे, राइट। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, और आपको, मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ लो कि एक कंटेंट को क्यूरेट करने में, एक कंटेंट को स्ट्रक्चर देने में, इवन दो इट टेक्स 1.5 घंटा लगे तो भी चलेगा। जितना हो सके उतना आप उसको स्ट्रक्चर्ड बनाओ, जितना हो सके उतना आप यूजर को फायदे के लिए बनाओ। और फिर कंटेंट राइटर को 2 ही चीज बोलनी है, नंबर 1 आपके शब्दों में लिखना है, माने यूनिक बनाना है, एंड नंबर 2 कि उसमें स्टैट्स ऐड करने, स्टैट्स, वो मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ। चलो, 1 मुखी रुद्राक्ष बेनिफिट, तो ये तरीके से आप कर सकते हो। गॉट इट? ये तरीके से पूरा कंटेंट क्यूरेट कर लिया। ये क्यूरेट करने के बाद आपको सीधा कहां पर जाना है, सीधा आपको जाना है डॉक में, और डॉक में इसको पेस्ट कर देना है। समझ रहे हो आप? व्हाट यू हैव टू डू, सॉरी नॉट कंपोज बट इन द ड्राइव, ये 9 डॉट्स है, उसमें जाना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, उसमें भी जा सकते हो, उसमें भी हाँ, जा सकते हो। और यहाँ पर न्यू में जाओ, न्यू में यहाँ से गूगल डॉक में जाओ, और गूगल डॉक में जाने के बाद गूगल डॉक में अभी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, कभी भी कोई भी चीज ऑफलाइन मत बनाओ, जो भी चीज है वो ऑनलाइन ही रखो, whether it is spreadsheet, whether it is doc, whether it is ppt, whether it is google form or whatever it is, right? So the point is here, ये बना दिया, और यहाँ पर शेयर में जाकर इसको सेव, चलो हमने शेयर में जाकर इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको दे देना है कि anyone with link can edit, क्योंकि आपके अलावा तो ये क्यों करना है, बार बार आपको सब लोगों को एक्सेस ना देना पड़े। एडिट और डन, और यहाँ से फिर उसी में कर सकते हो कॉपी लिंक, और अपने कंटेंट राइटर को ये ईमेल कर दो, अच्छी तरीके से बनाकर ईमेल कर दो, ये ईमेल कर दो। कंटेंट राइटर क्या करेगा, अभी कंटेंट राइटर
यहाँ से आपने जो बनाया है उसको यहाँ से फिर वो लिखना शुरू करेगा। इसके साथ में आपको क्या देना है, आपका टारगेटेड कीवर्ड भी देना है। मोबाइल चार्जिंग मोबाइल काम चालू ना बेटा, मोबाइल चार्जिंग ना, राइट। यहाँ से आप टारगेटेड कीवर्ड को ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये एक चीज आपको ऐड कर देनी है, उसका पूरा फॉर्मेट भी है हमारे पास, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज दैट कि टॉपिक से हम लोग कीवर्ड में जाएंगे और कीवर्ड से उसके साथ में क्या देंगे, रेफरेंस लिंक। और ये पूरी चीज किस कौन से फॉर्मेट में करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऊपर अगर आता है फॉर्मेट की स्टोर, राइट, यहाँ पर फॉर्मेट टू स्टोर डेटा इसमें नहीं ऐड किया, लेकिन फॉर्मेट टू स्टोर डेटा में आर्टिकल पोस्टिंग है। ये कौन सी नहीं चालू वाला आर्टिकल तो जवान पाले नु वीटी पण दवाई दवा दई छटिन आणि मारो ठाणे राइट, आर्टिकल पोस्टिंग, राइट। तो यहाँ से ये उसका फॉर्मेट है। पहले में डेट आएगा, उसके बाद कीवर्ड्स, उसके बाद सर्च वॉल्यूम, ये आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो रहेगा। यहाँ आपका लैंडिंग पेज, कौन से लैंडिंग पेज पर टारगेट करना है, आर्टिकल टॉपिक नेम, तो ये सारी चीज हमने अभी कहाँ पर रख दी, हमने जो अभी डॉक बनाया उसमें रख दिए, राइट। कौन सा टॉपिक का नाम है, टॉपिक कौन से ऐड करना है कंटेंट में, रेफरेंस लिंक क्या है, टारगेटेड कीवर्ड क्या है उसमें, आर्टिकल का टाइटल क्या है, ये सारी चीज हमने क्या कर दी है, इसमें ही ऐड कर दी। ये करने के बाद ये फॉर्मेट में करोगे तो क्या फायदा होगा, कोई चीज छूटेगी नहीं। सभी चीजों में स्ट्रक्चर बनाने का एक ही फायदा है कि आप उससे जुड़कर काम करोगे तो कोई चीज छूटेगी नहीं और जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो प्रॉपर प्रोड्यूस होगा, राइट। जब आप कोई अच्छी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उनके जो टेस्ट होते हैं वो क्यों हर बार सेम आते हैं, उसका ये रीजन है कि काफी सारी चीज उन्होंने फॉर्मेट से बनाई हुई है। फॉर्मेट मानी अगर इतनी क्वांटिटी है तो इतनी क्वांटिटी में ही ये चीज डालनी है, ये मसाला डालना है, ये क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी में ये मसाला डालना है, और उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो हो सके उतना ऑटोमेटिक। तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप एक चीज और मैं बताता हूँ कि जब आप कंटेंट राइटर को दे रहे हो तो कंटेंट राइटर को बोलो कि आप पूरे कंटेंट में 5 स्टैट को ऐड करो और 2 कोट को ऐड करो। इससे कंटेंट ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, इससे कंटेंट ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया इंट्रोडक्शन रुद्राक्ष, तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि भाई दुनिया में इतने टाइप के रुद्राक्ष मिलते हैं इतनी जगह से, तो इतने टाइप का जो है वो नंबर हुआ और इतनी जगह से जो लिखा वो भी नंबर हुआ। तो यहाँ पर वो मेरा मतलब है। कंटेंट राइटर्स क्या लिखता है नॉर्मली, मैंने यहाँ पर क्लासिक एग्जांपल दिया है। कंटेंट राइटर कैसे लिखेगा, अगर हम हेल्थ का आर्टिकल लिख रहे हैं कंटेंट राइटर कैसे लिखता है, कंटेंट राइटर कैसे लिखता है, ड्रिंक वाटर। एक्चुअल क्या होना चाहिए, कितना ड्रिंक वाटर करना चाहिए, ड्रिंक वाटर इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर द रीडर। वॉक डेली, कितना वॉक करना चाहिए, डू एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो द पॉइंट इज दैट कि जब आप कंटेंट में नंबर को ऐड करते हो वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है और ज्यादा यूजर के लिए काम का हो जाता है। तो कंटेंट में 5 जगह पर जहां पर मीनिंगफुल है, ऐसा नहीं है कि वो ठोस कर ऐड कर देना है, जहां पर मीनिंगफुल है और जहां पर यूजर को इसकी जरूरत है वहां पर कंटेंट राइटर को बोलो कि तू स्टैट ऐड कर, मानी नंबर ऐड कर और कोट ऐड कर। जैसे कि ये ईशा
के जो फाउंडर्स है सदगुरु, उन्होंने क्या लिखा है रुद्राक्ष के बारे में, राइट, और जो भी लोग हैं उन्होंने क्या बोला है रुद्राक्ष के बारे में, वो आप यहां पर लिख सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, उनके जो फॉलोअर्स होंगे, जैसे कि अगर कोई श्री श्री रविशंकर के फॉलोअर्स है या और किसी के फॉलोअर्स है, तो वो तुरंत ही उसको ये आर्टिकल में उनकी रुचि बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कोट के फॉर्म में। क्लियर फ्रेंड्स? और आप फैक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर, फैक्ट, 2 कोट्स एंड 2 फैक्ट्स। 2 फैक्ट्स आपको पता है ना, जैसे कि जो न्यूज में आया हुआ है, जैसे कि लास्ट ये जगह पर रुद्राक्ष की कुछ लोगों ने प्रयोग किया, ये एक्सपेरिमेंट किया था या वो किया था। 2 फैक्ट्स, 3 चीज अगर आप ऐड करोगे ना, तो वो कंटेंट, बिलीव मी, और ये मैंने 2 इसलिए लिखा है, ऐसा नहीं है कि 2 ही ऐड करना है। कोई बोलेगा आपने 2 ही क्यों लिखा है, 3 नहीं लिखा, 5 4 नहीं क्यों लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 भी यूज करते हो, 1 भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये क्वांटिटी इसलिए दी है कि उसको स्ट्रक्चर मिले। देयर इज नो थंब रूल ऑफ एडिंग स्टैट्स, कोट एंड फैक्ट्स। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद ये आता है कि फैक्ट्स ढूंढोगे कहाँ से। ये फैक्ट्स तो हमने ले लिए, लेकिन ढूंढोगे कहाँ से? तो 2 तरीके से आप ढूंढ सकते हो। या तो आप जो कंटेंट राइटर से आप आइडियाज ले रहे हो, कंटेंट से, वहां से ढूंढ सकते हो। दूसरा एक बहुत आसान तरीका है, और वो ये है, जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं ना, इन्फोग्राफिक्स मानी जिसमें इंफॉर्मेशन को नंबर के फॉर्म से दिखा, इमेज के फॉर्म में दिखाया है। सपोज यहाँ पर मैं रुद्राक्ष लिख देता हूँ, मिल गए। यहाँ पर किसी ने वो नहीं पब्लिश किया उसके इन्फोग्राफिक, लेकिन आई वुड सजेस्ट आप कर सकते हो। आई वुड हाईली सजेस्ट आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि किसी ने किया नहीं है, राइट? तो आप यहाँ से, ये एक, यहाँ से आपको फैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर रुद्राक्ष से लेकिन रुद्राक्ष माला से हम लोग देख सकते हैं इन्फोग्राफिक्स। ये इन्फोग्राफिक्स लिखना मैं भूल गया था, इसलिए आ गया रुद्राक्ष माला का इन्फोग्राफिक्स। 5 बेनिफिट्स, 5 मुखी कंठा, राइट? तो ये अभी हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, या फिर ओपन इमेज इन न्यू टैब को करते हैं, शायद हमें मिल जाए। यस, ये मिला। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा 5 मुखी रुद्राक्ष नहीं, ये यहाँ से इन्होंने और कुछ किया नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से और जगह से भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, चलो और कोई देखते हैं। ये जो पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमने मिला, लेकिन अभी मेरा क्या गोल है, अगर आपको कोई नंबर मिलते हैं कोई जगह से, तो आप इसको ले सकते हो। किन लोगों ने उसके यूजेस ही बताया, उन्होंने उसके नंबर्स को नहीं बताया, राइट? एनर्जाइजेशन, जो ये एनर्जाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, जिससे आप आसानी से यहाँ पर स्टेट्स को ढूंढ सकते हो। उसके बाद ये और एक है, निल्सन है और कॉमस्कोर है। यहाँ पर रुद्राक्ष का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए लिख रहे हो तो यहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे। और इसमें भी आपको साइड कॉलन करके ढूंढना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी वेबसाइट से अगर आपको ढूंढना है, तो आपको साइड कॉलन, डोमेन नेम और उसके आगे आपका कीवर्ड, मानी जो ढूंढना है वो। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये तरीके से आप स्टेट्स को
फाइंड कर सकते हो और ये चीज आपके कंटेंट में होनी चाहिए। और एक तो ये पहला तरीका हुआ जो मैंने अभी आपको बताया कि जो तरीके से आप कंटेंट को ढूंढ सकते हो आपके लिए और स्ट्रक्चर्ड वे से उसको स्टोर कर सकते हो। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप पूरे डेटा पर चले जाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा डेटा पर चले जाओ। तो एक टूल है keywords-tool.io। यहां से अगर आप सर्च करोगे तो आपको रुद्राक्ष के बारे में लोगों के दिमाग में इंडिया में कौन कौन से क्वेश्चन है वो एक साथ में मिल जाएगा। मिल गया। आर रुद्राक्ष इफेक्टिव? व्हाट आर रुद्राक्ष बीड? वेयर आर रुद्राक्ष trees found in India? How are रुद्राक्ष made? Where are रुद्राक्ष trees found? What are रुद्राक्ष beads used for? And so on। मिल गया, सारे क्वेश्चन मिल गए। ये सारे क्वेश्चन को जैसे हमने ये सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, यूजर के इंटेंशन के अनुसार दो जगह पर कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि लैंडिंग पेज पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, राइट। लैंडिंग पेज पर आर रुद्राक्ष इफेक्टिव ऐसा नहीं लिख सकते, वो तो हम लोग उसके दिमाग में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब आप रुद्राक्ष डू एंड डोंट्स है उसमें आप लिख सकते हो कि कब रुद्राक्ष इफेक्टिव ज्यादा होता है और कब नहीं होता है, राइट। या फिर आप रुद्राक्ष के लिए सिर्फ रुद्राक्ष के लिए डेडिकेटेड आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें जो क्वेश्चन आप ऐड कर सको वो कर सकते हो। सो द पॉइंट इज दैट कि ये जो क्वेश्चन आपको मिले वो क्वेश्चन को आप दो जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। एक है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज में कहां पर ऐड करेंगे, कोई बताएगा मुझे? Where we can, in which section we can add this into the landing page? कहां पर ऐड करेंगे ये? सर ये क्वेश्चन को लैंडिंग पेज पर कौन से सेक्शन में ऐड करेंगे? यस, किसी का आंसर आया। बहुत आसान है, मुझे पता नहीं आप लोग क्यों इतना नहीं कौन से सेक्शन में, कौन से पेज पर नहीं, कौन से सेक्शन में ऐड करेंगे, दैट इज माय क्वेश्चन। एफएक्यू में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, ये सारी जो चीजें हैं उसको एफएक्यू में ऐड करेंगे। और एफएक्यू बहुत बढ़िया तरीका है यूजर तक पहुंचने में। और बिलीव मी, एफएक्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू गेट वेल रैंक, टू गेट गुड रैंक इन गूगल, राइट। और उसको डेटा के साथ जाओगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्लियर? तो ये दूसरा एक तरीका है जिससे आप इंफॉर्मेटिव कीवर्ड को ढूंढ सकते हो। क्लियर? और तीसरा जो तरीका है जो हमने कीवर्ड रिसर्च के वक्त देखा था कि जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आप वहां से भी कीवर्ड प्लानर से आपके जो बाइंग इंटेंशन वाले कीवर्ड्स है उसको ढूंढ सकते हो। क्लियर फ्रेंड? तो पहला तरीका हुआ कीवर्ड रिसर्च टूल एंड keywords-tool.io। उससे आप लोगों के क्वेश्चन को ढूंढ सकते हो या लोग क्या इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं वो ढूंढ सकते हो। दूसरा तरीका है जिसमें आप यूजर की बाइंग जर्नी से ढूंढते हो, बिफोर बाइंग, ड्यूरिंग बाइंग एंड आफ्टर बाइंग। और बिफोर बाइंग में जो हमारा बेसिक टॉपिक है उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप किस तरीके से बनाओगे वो बनाओगे, और पूरा जो हमने अभी डिस्कस किया वो तीसरा तरीका है। तीसरा जो तरीका है वो है गूगल कीवर्ड टूल, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। और एक तरीका है फाइंड क्वेश्चन, आपने भी बता दिया। गूगल अलर्ट, यस, गूगल अलर्ट से भी आप रुद्राक्ष के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या पब्लिश कर रहे हैं, उससे भी आइडियाज लेकर
आइदर इन योर एग्जिस्टिंग कंटेंट, आप आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट में भी उसको ऐड कर सकते हो, या फिर नया कंटेंट भी उसके हिसाब से बना सकते हो। उसके बाद है गूगल न्यूज। सर एक्सक्यूज मी सर, गूगल अलर्ट में तो हमें रिसेंट अपडेट मिलेगा ना? हाँ, तो वो रुद्राक्ष वाले में रिसेंट अपडेट होगी, वो हम लोग नहीं रख सकते उसके ऊपर। No, that's perfectly fine. But I mean to say that कि सर गूगल अलर्ट जो हमें जो रिसेंट अपडेट देता है, तो हमें जो प्रीवियस डेटा के बारे में कुछ पता नहीं होगा, मतलब जो एग्जैक्टली करंट जो चल रहा है वही पता चलेगा मुझे। हाँ, तो वो अच्छा है ना, आप मल्टीपल वे से आर्टिकल लिखोगे, आप सिर्फ एक ही तरीके से नहीं लिखोगे। Actually, it is one portion to help us alert. Exactly. पूरा उस पर लिखना है। एग्जैक्टली राइट। जितनी बेसिकली क्या है कि जब गूगल आपकी वेबसाइट को देखेगा ना, तो गूगल को पता लगेगा कि ओहो ये वेबसाइट पर रुद्राक्ष के बारे में सारी जानकारी है जो यूजर को चाहिए। तो इससे इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा, लैंडिंग पेज रैंक तो अप। आपका रैंकिंग में आएगा ही आएगा, लेकिन आर्टिकल भी आने लगेगा रैंकिंग में, और आने लगेगा तो उससे ये फायदा होगा कि रेफरल ट्रैफिक भी आपको मिलेगा और आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होगी, ये बंदा इसमें माहिर है, राइट। बस सुमो करके एक है टूल। ये टूल बेसिकली क्या है, ये टूल का काम क्या है वो मैं आपको एक नटशेल में बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा रुद्राक्ष, ये बस सुमो क्या करेगा, रुद्राक्ष के बारे में अभी तक जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उसमें कौन से आर्टिकल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लोगों का एंगेजमेंट, जो आर्टिकल को सबसे ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा मिला है, वो आर्टिकल यहाँ पर सबसे पहले दिखेगा। जैसे कि रुद्राक्षा टू प्रूव रिलीजन बेगिंग फॉर माई लाइफ, दिस इज नाउ दिल्ली, राइट। ये फेसबुक पर 36.1 टाइम्स इसका एंगेजमेंट हुआ है। इसका क्या मतलब है, 24.8 लोगों ने लाइक किया है, 9.5 लोगों ने शेयर किया है, 1.8 लोगों ने कमेंट किया है, और ये रिएक्शन है उसके, राइट। ये अच्छा आर्टिकल नहीं है बेसिकली, लेकिन मैं तो अभी आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि किस तरीके से टॉपिक जब आप ढूंढ रहे हो तो ये देख सकते हो कि ये टॉपिक किस टाइप के टॉपिक लोगों को ज्यादा पसंद आता है, या किस टाइप के रैंकिंग आपको ज्यादा पसंद आता है। ये एक है, ये है खबर नेटफ्लिक्स, तो ये 4.5 टाइम्स हुआ है। तो वे ऑफ राइटिंग, हाँ, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सारे तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये आर्टिकल में ऐसा क्या है जिससे ये आर्टिकल को इतना एंगेजमेंट मिला। और एक चीज आप कर सकते हो, ये आर्टिकल की बैकलिंक चेक कर सकते हो कि ये आर्टिकल ने कौन कौन सी जगह पर बैकलिंक को रखा है। राइट, ये आर्टिकल ने कौन कौन सी जगह पर बैकलिंक को रखा है। ये तो मुझे सिर्फ वीडियो ही दिखाई दे रहा है, राइट, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ये आर्टिकल को भी आप कर सकते हो कि ये आर्टिकल को, राइट, ये आर्टिकल ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सॉरी आर्चिव ये है। जो है इंफॉर्मेटिव साइट है, और यहाँ पे इनके अपने भी सब्सक्राइबर होंगे, तो उन पे उनका रीच तो बहुत इजी होगा पहुंचना ना। नहीं, वो बेसिकली ये फेसबुक का एंगेजमेंट है, उनकी साइट का एंगेजमेंट नहीं है। नो आई मीन टू से दैट कि जस्ट जो साइट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने मेरी कोई साइट है, मैंने उसका एक पेज बना के रखा, उस पेज पे मेरे सब्सक्राइबर है, तो मुझे उनको पोस्ट करना इजी हो जाता है। हाँ, तो होगा ना, वो तो होगा ही होगा। लेकिन ये जो मेरा ये क्वेश्चन, मेरा ये है कि ये आर्टिकल इसलिए
हमें बेसिकली क्या मिला है, ये आर्चिव मिला है, ये उसका ओरिजिनल आर्टिकल नहीं मिला है। उसका ओरिजिनल आर्टिकल इस तरीके से मिला होता ना तो हमें आसान हो जाता उसकी बैकलिंक को चेक करना, क्योंकि ये एंगेजमेंट उसकी वेबसाइट के यूजर से नहीं हुआ है, ये एंगेजमेंट उसको थर्ड पार्टी वेबसाइट पर हुआ है। तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। तो सर आपका बोलने का मतलब कि जो ये जो आर्काइवल है उसको हम बैकलिंक में जाके चेक नहीं कर पाएंगे? आर्काइव होगा तो नहीं कर पाएंगे, ओके। राइट। और बेसिकली ये टूल का ये पर्पस है कि ये जानना कि लोगों को कौन सी चीज पसंद है, जो पसंद है उसका मैट्रिक्स क्या है, राइट। वो जो पसंद है उसका मैट्रिक्स, जो एंगेजमेंट है वो है, और वहां से आप उसके आइडियाज ले सकते हो, राइट। उसको कॉपी नहीं करना है, उसके आइडियाज ले सकते हो और उबर सजेस्ट या एसईएम रश से उसकी बैकलिंक निकालो कि उसको इतना एंगेजमेंट मिला तो कौन से लोगों ने उसको लिंक दी है, और वो लोगों को जाकर आप अप्रोच करो कि आपने यार रुद्राक्ष को ये वेबसाइट को लिंक दी है, मुझे भी दो लिंक, या आप उसको ईमेल करो, और अगर रेडीमेड है तो वहां पर जाकर सबमिट करो। इससे आपका आर्टिकल भी आपके लिए एज अ रेफरल ट्रैफिक के तौर पर काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्लियर? तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको आर्टिकल ढूंढना है, आर्टिकल के टॉपिक जो हमने अभी बनाए उसको और अच्छी तरीके से ढूंढना है, तो एक इजी आर्टिकल करके जिससे आप सीधा यहां से लिख सकते हो उसको, राइट। 47 टॉपिक्स है, राइट, वो उन्होंने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहां से भी आप रुद्राक्ष के बारे में जो हमने टॉपिक लिखे है उसका बेटर टाइटल क्या हो सकता है, वो यहां से आपको आइडिया मिलेगा। समझ रहे हो आप? जैसे लिखा है द ट्रूथ अबाउट रुद्राक्ष, द क्लेम प्रूवन एंड द करंट। समझ रहे हो आप? तो द पॉइंट इज दैट कि यहां से आप आर्टिकल के टाइटल के आइडियाज ले सकते हो, गूगल से भी ले सकते हो और यहां से भी ले सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है। ये तीसरा तरीका है जहां पर आपको लोगों ने इंटरनेट पर क्या लिखा है उसके बेसिस पर आपको आपके टॉपिक्स बनाने हैं। और मैंने आपका काम इजी करने के लिए एक टूल बनाया है जिससे आप आपका काम बहुत आसान कर सकते हो। राइट, इसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको ये करना है कि यहाँ पर रुद्राक्ष लिखना है, यहाँ पर आपके 3 कीवर्ड लिख देने हैं। राइट, और जैसे ही आपने ये बनाया ना, आपके लिए टॉपिक अपने आप रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर बाजू में आ गया, सर ये तो राइट। मैक्रो है। ये बैकएंड में जो काम कर रहा है ये मैक्रो नहीं है। तो यहाँ से ये सारे आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होंगे, लेकिन अगेन ये पीपीसी सर्विस का मैं निकाल देता हूं वरना यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड। यहां से आप कंटेंट के टॉपिक के आइडियाज ले सकते हो, राइट। कि 13 थिंग्स अबाउट 14 रुद्राक्ष माला यू मे नॉट हैव नोन, राइट। 15 थिंग्स योर बॉस विशेस यू न्यू अबाउट, राइट। तो ये प्री डिफाइन है, राइट। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए
तैयार हो गए। ये आपको लग रहा है ये टॉपिक है ना, हमारा जो टॉपिक है ना वो थोड़ा टेक्निकल नहीं है, वो थोड़ा नहीं, वो टेक्निकल नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है कि इसलिए वो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक वेग लग रहे हो या प्रॉपर नहीं दिख रहे हो, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि अगर आप टेक्निकल कीवर्ड इसमें ऐड करोगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ऐड करोगे ना, या पीपीसी सर्विस या डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ एसईओ सर्विस, पीपीसी सर्विस और सोशल मीडिया राइट, ये मैंने 3 चीजें लिखी, यहाँ पर अभी आपको मीनिंगफुल लगेंगे। राइट, क्लियर? सो द पॉइंट इज दैट कि हमारे लिए एक साथ में 251 टॉपिक जनरेट हो गए, जिसमें से हम लोग जो मीनिंगफुल है और जो कन्विंसिंग है वो टाइटल को हम लोग जब पब्लिश करेंगे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका है, राइट, जिससे आप आपके आर्टिकल के टॉपिक बना सकते हो। आपको और कुछ नहीं करना है, इसकी कॉपी बना देना है और ये कॉपी बनाकर यहाँ पर 3 वर्ड ऐड कर रहे हैं, और जैसे ही 3 वर्ड ऐड करोगे अपने आप यहाँ पर टॉपिक बन जाएंगे। सर जस्ट वांट टू आस्क यू, सर ये जो क्वेश्चन आपने रेडी किए हुए हैं क्या ये, और वो Yes. जो आगे के जो हम जो वर्ड्स में टॉपिक ऐड करते हैं वो यहाँ पे ऐड अप हो जाते हैं, ऐसा है? हाँ, ऐसा है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से, कोई बोले यार मेरे पास कंटेंट का टॉपिक नहीं है, एकदम आसान चीज है, ये 251 में से आपके लिए 10 तो आर्टिकल काम का निकलेगा ना, टाइटल निकलेगा ना मिनिमम, मेरे ख्याल से तो 100 जितना निकलेगा, लेकिन 10 भी निकल गया तो जो टॉपिक ढूंढने की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की थॉट प्रोसेस है वो हम काफी हद तक उसको ऑटोमेटेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है जिससे आप आर्टिकल के टॉपिक को ढूंढ सकते हो, राइट। तो यहां तक हम लोग रखते हैं। कमिंग लेक्चर में, यस एक मिनट, कमिंग लेक्चर में हम लोग किस तरीके से आर्टिकल को पोस्ट किया जाता है और आर्टिकल को पोस्ट करते वक्त कौन सी चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, वो चीज हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को। यस बताइए सर, कंटेंट राइटिंग समझो करने के लिए कोई वैसे बंदे हैं आपके कांटेक्ट में जो हमको समझो सपोर्ट करें? हाँ मतलब है, लिख के दें? हाँ दे सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको उनके हाँ। नाम और नंबर शेयर कर दूंगा। ओके सर, ठीक है, यस यू कैन कांटेक्ट देम डायरेक्टली एंड दे विल हेल्प यू इन द राइटिंग। ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी फटाफट रिकैप कर लेते हैं पूरे लेक्चर को। सबसे पहला है सर एक्सरसाइज में क्या करना है? एक्सरसाइज में आपको, आप जो डोमेन पर काम कर रहे हो उसके लिए Okay. आपको, हाँ उसके लिए आपको ये जो 3 मेथड आपको मैंने सिखाई, यूजर की बाइंग जर्नी, दूसरा गूगल पर वो सर्च क्या कर रहा है वो एफएक्यू के फॉर्म, क्वेश्चन के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, और तीसरा ये जो ऑटोमेटेड टूल, ये जो 3 तरीके से मैंने आपको कंटेंट के टॉपिक बनाना सिखाया, वो तरीके से आपको एक डोमेन के लिए 5 टॉपिक, सब टॉपिक और रेफरेंस लिंक जो मैंने पहले आर्टिकल के लिए किया था वो आपको करके मुझे देना है। सपोज ट्रेनिंग इन एसईओ है तो ट्रेनिंग इन एसईओ के 5 टॉपिक, सब टॉपिक एंड रेफरेंस लिंक, सेम फॉर द अदर वन। क्लियर? डन।
राइट। ये 3-4 घंटे की एक्सरसाइज है अगर अच्छी तरीके से करोगे तो। लेकिन ये अगर किया आपने तो आप ये सीख जाओगे कि कंटेंट को किस तरीके से मीनिंगफुल कंटेंट को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, और वो कंटेंट फिर आप देखो आपको रैंकिंग में मानी जो कीवर्ड के लिए आप वो कंटेंट लिख रहे हो वो कीवर्ड के रैंकिंग में, और जो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड आपने वो कंटेंट में डाले राइट, उसमें आपको कैसे रैंकिंग मिलता है। आपने इमेजिन नहीं किया होगा उस तरीके से आपको रैंकिंग मिलेंगे, क्योंकि आपने सारी चीजों को टेक केयर कर लिया है जो गूगल पर लोग ढूंढ रहे हैं या लोगों के दिमाग में हो सकती है, और वो उसका जो प्रेजेंटेशन है। और मेरा ये सुझाव है, जैसे हमने अभी वैभवी ने बताया कि जब आप उसको रीड करने के लिए बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि ये कंटेंट राइटर ने झोल किया है, राइट। ये होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ द केस में होता है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, आपको मैन्युअल रिव्यू करना पड़ेगा नंबर 1, एंड नंबर 2 कंटेंट राइटर को एजुकेट करना पड़ेगा। पहला चीज है आप खुद रिसर्च करो, दूसरी चीज है कंटेंट राइटर को एजुकेट करो, और तीसरी चीज है आप खुद रिव्यू करके माइनर अमेंडमेंट करो, तो ही आपका आर्टिकल मीनिंगफुल प्रोड्यूस होगा, वरना स्क्रैप ही पैदा होगा, वरना स्क्रैप ही प्रोड्यूस होगा, राइट। स्क्रैप मानी सिर्फ वो आर्टिकल गूगल के लिए लिखा हुआ है, यूजर वो कभी भी पढ़ने वाला नहीं है। क्लियर? दैट इज व्हाट आई मीन बाय स्क्रैप। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चेतन आप बताइए, पहले तरीके में मुझे आप एक कौन से तरीके से दो आर्टिकल के टॉपिक जनरेट करने के तरीके बताइए। तरीके मानी बिफोर बाइंग में दो आप बताइए, दो यूजुअली जो दिमाग में क्वेश्चन यूजर के रहते हैं वो। ओके, तो सबसे पहले बता दूं मैं, बिफोर बाइंग से पहले हम लोग को जो ध्यान रखना पड़ता है वो दे आर द 4 पॉइंट्स, दे आर मेजर पॉइंट्स। हम लोग जब कंटेंट बनाते हैं, दैट इज बिजनेस मॉडल वी नीड टू कीप इन माइंड, एंड व्हाट आर द रीजंस, ऑडियंस एंड टारगेटेड कीवर्ड्स हम लोग को लेना चाहिए। तो इसका हमारा बिफोर बाइंग आता है। बिफोर बाइंग सबसे पहले आता है कि ये अपना जो भी प्रोडक्ट है वो क्या करता है, क्या है, किस चीज के लिए है वो, तो हम लोग को उसका बताना पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग को कीवर्ड देने पड़ते हैं। And उसमें we can say like what are the types and what are the benefits of the products what you are getting. Okay, दूसरा टॉपिक। देन उसके बाद है कि बायर को कैसे रिटर्न मिल रहा है, तो उसको उसमें कुछ भी है तो उसको रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो मिलेगा तो किस वे में मिलेगा, तो वो हम उस पे हम लोग आर्टिकल दे सकते हैं। दो टॉपिक हुए, सबसे पहला हुआ बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर 2 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द उसके प्रोडक्ट। बाद अगर हमारी जो टारगेट ऑडियंस है तो उनके लिए कितना वैल्यू कर रहा है वो चीज। करेक्ट, सही है। सरिता आप बताइए दूसरे दो टॉपिक इसके अलावा बिफोर बाइंग में जो आते हैं। I'm so sorry, मुझे समझा ही नहीं पूरा आर्टिकल है। यस सर मैं बोलूं? तो आप कोई भी बताइए, आप आंसर नहीं दोगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा फिर। No, sir. That which I have understood so far, that is for the 4 things we have to take care of it: the business model, the targeted audience, and their interest, and we have to look for the targeted keyword as well. लेकिन वो तो चेतन ने बता दिया है, आप कुछ नया बताओ। हमने जो 1.5 घंटे में मैंने आपको मिनिमम 50 चीजें बताई है, उसमें आप मुझे 2 तो बताओ। Sorry, sir, but I am not able to add up on that. लेकिन आप और कोई तरीका बताओ जिससे आप कर सकते हो। आपने ये जो पूरा लेक्चर पढ़ा उसमें से 2 चीज तो आप बता सकते हो ना कि ये आप कंटेंट में कर सकते हो, ये कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ट्राई नहीं करोगे तो आप आपकी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर कैसे निकलोगे। आपको आपके कंफर्ट जोन आपको आप बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको, अगर इस बार आप 2 चीज बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम आप 4 चीज बता पाओ। यस बोलिए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट
विशाल आप बताइए। हाँ सर, इसमें हमको बिफोर बाइंग में हाउ टू बाय प्रोडक्ट रीजनेबली, ऐसे उसके रिलेटेड हम आर्टिकल वेरी लिख गुड, सकते हैं। वेरी गुड, वो मेन सबको प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं ज्यादा पैसे तो नहीं दे दूंगा, करेक्ट। और एक वो है। और समझो आफ्टर बाइंग, नहीं, आप मतलब बिफोर बाइंग में और एक है अभी, और एक है चीज जो हम लोग कर सकते हैं, फीचर्स, फीचर्स ऑफ द Yes. प्रोडक्ट। हाँ उसके डिटेल्ड फीचर्स एक्सप्लेन करेक्ट, करने के फीचर्स एंड टाइप्स, जो भी है। टाइप्स, ओके, यस, हाँ टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। हाँ, जैसे टाइप्स उसको है अब, डिटेल मिले, करेक्ट, जैसे ये वो रुद्राक्ष अपनी पेन, चीज फाइनल कर सके सही ढंग में कि हाँ करेक्ट, मुझे यही चाहिए। करेक्ट, 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 टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इट्स बेनिफिट्स, समथिंग लाइक दैट, ओके। राइट? ठीक है, ओके। और ड्यूरिंग बाइंग में हम क्या करेंगे? हाँ, ड्यूरिंग बाइंग तो हम अपना मोस्टली ज्यादातर हमको हमारा प्रोडक्ट पेज ही देना होता है। करेक्ट। तो और उस, हाँ, यस, ड्यूरिंग बाइंग में हम लोग कंटेंट में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? ड्यूरिंग बाइंग में कंटेंट में वैल्यू एडिशन, आज मैंने जो आपको बताया उसमें से कौन से टॉपिक में, कौन से तरीके से आप जो ढूंढ रहे हो डेटा को या हाँ यूजर की सर्च क्वेरी को, उसमें कौन से लेवल पर हम लोग वो लैंडिंग पेज पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सर हम तो उस पे तो समझो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करना है ना प्रोडक्ट पेज पे, तो इसके हाँ, लिए। लेकिन उसमें एफएक्यू जब आप लिख रहे हो, हाँ तो एफएक्यू के सेक्शन में आपने जो keywords-tool.io से जो हाँ क्वेश्चन हाँ आंसर हाँ हाँ निकाले, हाँ, जो 50, या फिर वो जो मैक्रो था, नहीं वो तो खैर आर्टिकल के लिए था। ना वो आर्टिकल के लिए था, वो जो हाँ हाँ, keywords-tool.io है, वो इसके लिए नहीं था। हाँ हाँ, keywords-tool.io है ना, हाँ हाँ, उसमें उसमें से सब आप, Keywords. उसमें से बहुत उस, सारे ऐसे चीजें मिलेगी जो आप लैंडिंग पेज पर लोगों के हाँ क्वेश्चंस के आंसर के तौर पर, एफएक्यू के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, For जिसकी वजह से example, उनको मतलब BPM टारगेट हो। price. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यस अंशु, आप बताइए, Yes, आफ्टर बाइंग में कौन कौन सी चीज के टॉपिक पर हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं? yes, sir. आफ्टर बाइंग में हम पहले इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है कि ये कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका यूज कैसे हो सकता है। वेरी गुड, हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट, करेक्ट। उसके बाद में बाद इसके बाद में उनका कब चेंज करनी है, वो कितने साल तक चलेगी प्रोडक्ट और कब उसको, करेक्ट, करेक्ट, और कुछ? वेरी गुड, और उसका जो मेंटेनेंस वेरी गुड, परफेक्ट। यूज तीन होता चीज होती है, तीन चीज होती है, उसको स्टोर कैसे करना है, है। उसको यू पहले से यूज कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, और तीसरा उसको कब रिप्लेस करना है। ठीक है, ये तीन चीज होती है। वेरी गुड, तो हमने ये पहला तरीका जो था, पूरी बाइंग जर्नी उसको स्टडी कर लिया। अभी वैभवी आप बताओ, और कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग कंटेंट बना सकते हैं? So basically, to get the funda, how to write a content for the product. So we have to make a structure like basic fundas or basic words we can make a content about. करेक्ट, So we वो have to कैसे make ढूंढोगे? that with Google search, with Google alerts, with relevant websites or our competitor analysis. जो आपको, हाँ, जो आपको सही है, गूगल अलर्ट से नहीं मिलेगा, इन फर्स्ट पेज नहीं मिलेगा। गूगल अलर्ट तो कैसी चीज है कि जब वो प्रोड्यूस होगी तब आपको मिलेगी, जब, लेकिन जब आपने ये टॉपिक बनाया और अगर आप उस पे सब टॉपिक ले रहे हो, तो वो केस में आपको जो मिलेगा ना, वो मिलेगा वहां से, गूगल के सर्च के नीचे जो सर्च सजेशंस आते हैं वहां से, वहां से मिलेगा ये. राइट, वहां से आपको मेजरली मिलेगा, और आपके कॉम्पिटिटर्स जो वो कीवर्ड पर जो रैंकिंग में आ रहे हैं, वो कीवर्ड्स पर जो रैंकिंग में आ रहा है वहां से मिलेगा। और एक तरीका है जिससे आप ले सकते हो, मैंने आपको शायद ये चीज में, ये इसमें मैंने मिस कर दिया, वो है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड, ये है गूगल ट्रेंड। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, मौलिक भाई, मौलिक सर, कैसे लिख सकते हो आप? रुद्राक्षा
और यहाँ पर आप इंडिया कर दो। तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि रुद्राक्ष के लिए लोग कहाँ पर सर्च करते हैं। तो पहले तो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में इसका सर्च ज्यादा है। रिलेटेड क्वेरी हमें नहीं मिल रही है क्योंकि कम तो है। टाइपिंग में एरर है, टाइपिंग सर एरर सर, रुद्राक्ष है वो, रुद्राक्ष होगा। रुद्राक्षा, ओके। KSHA, यस। उत्तराखंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात सभी पर है इसकी डिमांड। ये है, ये सारे राइजिंग सर्च क्वेरीज है जो लोग सर्च कर रहे हैं। बेनिफिट से बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, पता लगा आपको? तो आपको सभी आर्टिकल बेनिफिट के ऊपर तो लिख ही देना है। और ऐसी 25 क्वेरीज है, देखा? तो यहां से भी आप आइडियाज ले सकते हो कि आपका जो मेन टॉपिक है उसके रिलेटेड आपका जो रीजन है उसमें कौन से टॉपिक पर लोग ज्यादा ढूंढते हैं। राइट, अभी कोरोना की वजह से यहाँ पर डाउनफॉल आ गया है। राइट, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो पीक पर था फरवरी में। इट वाज इन द पीक इन द मंथ ऑफ फरवरी। राइट, ये भी पेड टूल है? नहीं, ये फ्री है। ये फ्री है ना? ये फ्री है, ये फ्री है। ओके, राइट, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे विथ विच यू कैन फाइंड दैट how the people are searching and what is the trending, what are the things in trend in search, वो आप यहाँ से ले। ये +80% मानी लोग जो यूजुअली सर्च करते हैं ना उससे अभी 8 टाइम ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ये उसका ये मतलब है, समझ रहे हो आप? तो दिस इज द अनदर वे। ओके, उसके बाद किसका है? सरिता, अंशु, कौशिक। यस कौशिक, आप बताइए। यस कौशिक, आप बताइए कि और कोई तरीका मुझे बताइए जिससे हम लोग कंटेंट को ढूंढ सकते हैं। सर जो आपका टूल है ना, टूल जनरेट 25 हाँ, करेक्ट, उसके जरिए भी हम फ्री जो क्वेश्चन है उसमें हमारा प्रॉब्लम रख के वो शायद ढूंढ सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसमें हम लोगों को हमारे कीवर्ड रखने हैं। हाँ, प्रॉब्लम की बजाय क्या रखना है? कीवर्ड को रखना है। कीवर्ड मानी जो कीवर्ड, जो बेस वर्ड से हम लोग आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो। हाँ, और जैसे ही आप लिखोगे यू विल बी एबल टू फाइंड दैट automatically 251 article topics have been generated, and out of those topics, whatever the topics you find meaningful, you can create content on those topics. Clear? Yes भाई, और कुछ छूटा है इसमें अभी जिसमें आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो? The infographics. ओके, इन्फोग्राफिक्स का क्यों, कब इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे? When we are writing the content, so we can know, we can conclude the sub data or subdivision of the content. Okay. So with the analysis of infographics along with our keyword, we can get general ideas or general properties of the content of the subject. Right. कंटेंट में हमें बेसिकली क्या ऐड करना चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स वी शुड ऐड इन द कंटेंट? numbers, 5 stats and facts and quotes we need to add. करेक्ट, And फैक्ट्स, स्टैट्स एंड कोट्स। यस, बोलिए आप। वही बोल। नहीं सर, आ गया। आ गया, ओके। तो ये चीज हम लोग बेसिकली कंटेंट, और ये आप कंटेंट राइटर को बोलो कि ये ऐड करे, वरना वो नहीं ऐड करेंगे। राइट। और एक चीज आपको कंटेंट राइटिंग में क्या ध्यान में रखनी है कि कंटेंट राइटर बेसिकली क्या करते हैं कि एक ही चीज को घुमा घुमा कर बहुत लिखते हैं। राइट, अगर आप बोलो कि भाई रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष है, वो लोग क्या लिखेंगे? आपको पता है 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं? मुझे ये जानकर, मेरे हिसाब से 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। ऐसे घुमा घुमा कर 4-5 बार लिख देंगे। अभी हम लोगों को क्वेश्चन ये आता है, इसीलिए मैंने जो बोला ना कि आपको मैन्युअल रिव्यू करना पड़ेगा, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कंटेंट राइटर को नॉर्मली जो पेमेंट होता है ना वो नंबर ऑफ वर्ड्स पर होता है। तो वो लोग ये अपने वर्ड को बढ़ाने के लिए ये वेग या एक ही इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं। तो आप इससे रीडर बहुत बोर होता है।
रीडर्स बोर होता है, रीडर्स पढ़ता ही नहीं है ऑनेस्टली, हाँ बैक बाद चला जाता है, चला जाता है। हम भी नहीं, इसीलिए मैं बाउंस रेट बोलता हूँ बढ़ जाता है। बाउंड्री बढ़ जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप, आपका कंटेंट और कोई पढ़े ना पढ़े, आप पहले पढ़ना, राइट? आप पढ़ोगे तो ही आपको पता लगेगा कि वो कंटेंट आप जो लिख रहे हो अल्टीमेटली यूजर के लिए कितना मीनिंगफुल है, राइट? और बिलीव मी, आने वाली जितनी भी गूगल की एल्गोरिथम अपडेट है, उसमें गूगल धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना स्मार्ट होता जाएगा कि आप जो पढ़ते हो और आपको पता लगता है कि ये काम का है नहीं, वो गूगल को भी पता लगने लगेगा या लग रहा है ऑलरेडी। क्लियर? सो आने वाले समय में भी कंटेंट को जो लोगों ने सिर्फ गूगल के लिए बनाया है, माने लिंक के लिए बनाया है, वो सारे उसकी अथॉरिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जो लोगों ने यूजर के लिए बनाया है, प्रॉपरली रिसर्च करके बनाया है, यूजर जो चीज के लिए डिमांड कर रहा है उसको कंसीडर करके बनाया है, दे विल बी द विनर और दे विल बी अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, राइट? ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं। कमिंग लेक्चर में हम लोग आपकी एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, और कमिंग लेक्चर में हम लोग वेब 2.0 के लिए करेंगे। हेलो, यस यस बोलिए। हाँ हाँ, एक्सरसाइज कैसे करनी है एक बार फरीથી समझेगा ना એટલે एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है कि आपको एक्सरसाइज में आपको जो आपके जो डोमेन है, 2 डोमेन जिस पर आप काम कर रहे हो, उसके लिए 5 टॉपिक ढूंढने हैं। એટલે એક પર્ટિક્યુલર જે આપણે ડોમેન છે અને પ્રોડક્ટ ઉપર 5 ટોપિક. કરેક્ટ. મેં જેમ હમણે આજે ક્રિએટ ના કર્યો એક ટોપિક રુદ્રાક્ષ માટે, એવી રીતે તમારે 5 ટોપિક ક્રિએટ કરવાના, એના સબ ટોપિક ક્રિએટ કરવાના, એની રેફરન્સ લિંક તૈયાર કરવાની, એ કરવાનું. જે મેં એક માટે કર્યું ને એ તમારે 10 વાર ક્રિએટ કરવાનું. સિમ્પલ. રેફરન્સ લિંક મતલબ કે આપણે જે ઇન્ફોગ્રાફિક્સ જે આપણે સર્ચ કરીને એમાં ઇન્ફોગ્રાફિક્સ વેલ્યુએશન નહીં, કરીએ આર્ટિકલ. ઇન્ફોગ્રાફિક્સ નહીં, એટલે આર્ટિકલ. આર્ટિકલ સર્ચ કરીએ Correct. એમાંથી જે કરેક્ટ એ પ્રમાણે. કરેક્ટ 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 કરેક્ટ. આ રેફરન્સ લિંક એટલે કન્ટેન્ટ રાઇટરને લખવા માટે આઈડિયાઝ ક્યાંથી લેવાના છે, રો મટીરિયલ ક્યાંથી લેવાનું છે, that is the reference. Clear? Right? Okay friends, thank you. Okay, sir. Okay, bye. Take care, sir. Thank you. Thank you.